Dramatic footage caught on camera, the visuals of it on your screens. The visuals show that the ride suddenly broke and the policeman is said to have tried to save others when suddenly another part of the ride also fell on him. According to the FIR that has been accessed by Times Now, the mishap occurred due to the negligence by the swing operator who allegedly ignored mandatory safety norms. The complaint states that the operator's carelessness directly led to the fatal incident. The case has been registered under the BNS Section 105. Further investigations are also underway. We have more updates now coming in the story. We are getting updates that a special investigation team will probe the Surajkund horror, and 2 people have been arrested in connection with the incident. So 2 people have been taken into custody, but questions still arise. What led to this unfortunate tragedy? There have been multiple violations. My colleague Manoj is joining us on the broadcast with the details. And Manoj, there is a lot of anger over the incident. It was an amusement ride. It crashes. Multiple people injured. One policeman on duty who was only trying to save those who were injured, also losing his life. What are the details? What have the investigations revealed so far? देखिए, अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि जो झूला संचालक था, जो कंपनी थी जिसने झूला वहां पर लगाया हुआ था, उसने लापरवाही बरती और इसी की वजह से ये हादसा हुआ है। बहरहाल ये शुरुआती जानकारी है, लेकिन इसकी गहराई से जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस ने एक SIT अब बना दी है। 3 मेंबरी जो कमेटी है, SIT है, ये बनाई गई है, जो जांच के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो हरियाणा पुलिस को सौंपेगी। इसके साथ साथ एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो कि फरीदाबाद के डीसी की अध्यक्षता में बनाई गई है। तो गहनता से इसकी जांच फिलहाल चल रही है और जो संचालक है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला फिलहाल बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस को है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जो मृतक है इंस्पेक्टर, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और जो हरियाणा पुलिस की नीति है उसके तहत ड्यूटी पर जो जिनकी मृत्यु होती है उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक जो सहायता है वो भी परिजनों को सौंपी जाएगी। जी। Okay, all right. The question is there no value for life? It's the same template that we're seeing time and again. Unfortunate incidents like this take place because of multiple violations. A probe is ordered at max and a suspension takes place. But the question is there no value for life? In this case, a policeman losing his life just trying to save the others who were injured because of these glaring violations, because these safety norm checks were not conducted. We have reactions coming in from the police officials. Listen in. क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। So an FIR has been filed in this regard, but the FIR only mentions that the vendor is responsible for the accident. The question is accountability being shirked by the authorities in this case? My colleague also gets us a ground report on what were the violations that took place, the condition. Take a look. आज रियलिटी चेक करेंगे हम, इन्वेस्टिगेट करके आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि तमाम झूलों को चेक किया जाता है हर दिन और उसके बाद सर्टिफिकेशन और एनओसी दिया जाता है। अब देखिए, एक झूले पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से इस झूले का जो ये सीट है, इसके नट जो पुर्जे हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हिले हुए हैं, आपको नजर आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए, एक दूसरी तरफ ये जो बहुत टाइट है, ये देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है। इसके बगल में देखिए ये बिल्कुल टाइट है, इंटैक्ट है। वहीं इसको देखिए ये किस तरीके से हिला हुआ है और ये स्विंग है, यानी कि ये आप समझिए ऊपर इस तरीके से उठ के जाता है और उसके बाद वो फिर नीचे आता है। ऐसे में अगर जोरदार प्रेशर आए तो ये बहुत मुमकिन है कि ये जो झूले का नट है वो निकल जाए। इसी तरीके से देखिए कुछ और नट हैं वो इसके यहाँ पर हिले हुए हैं। ये देखिए आपको एक और जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से। ये देखिए इसके भी जो नट है, ये देखिए यहाँ पर हिले हुए आप
आपको नजर आएंगे। ये इंटैक्ट है, ये हिला हुआ है। इस तरीके से जब हमें ये दिख रहा है, जब हम आपको ये दिखा रहे हैं, तो आखिर ये प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर जो झूला चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? और आखिर इन सिस्टम के खिलाफ जो कार्रवाई है वो कब होती हुई नजर आएगी? सूरजकुंड मेले में एक बड़ा हादसा हुआ जहां मेले में लगे झूला अचानक से गिर गया। पहले आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए ये वही झूला है और शाम के तकरीबन 6:15 के आसपास की घटना है। इस झूले के ऊपर लगभग 15 लोग सवार थे और ये झूला अचानक से धम से गिरता है। जिस वक्त ये झूला गिरा इसके आसपास भी लोग मौजूद थे। ऐसे में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हुआ और तमाम जो लोग घायल थे उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस दौरान एक पुलिसकर्मी जब लोगों को बचाने के लिए वहां से रेस्क्यू करने निकले, अचानक से उन्हें झूले का एक हिस्से से चोट लगा और उस पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। तो आपको तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ पे छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरा हादसा हुआ उस दौरान से लगातार जो तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर छानबीन करने में जुट गए। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से भी मामले की जांच को लेकर के आदेश जारी किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि वह जो है जो लोग घायल हुए हैं उनके त्वरित इलाज किया जाए। फिलहाल जो 13 लोग जो घायल थे उसमें से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तमाम अधिकारी वो भी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना, इस पूरे हादसा का जिम्मेदार कौन है। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में कल एक बड़ा हादसा देखने को मिला। दरअसल सुनामी स्विंग नाम से एक झूला लगा हुआ था जिसपे 26 लोग सवार थे, इंतजार कर रहे थे उस एक्साइटमेंट का, मेला घूमने के लिए आए थे अपने परिवार के साथ। लेकिन जिस तरीके से झूला इतनी स्पीड में था, अचानक से वो झूला टूटता है और नीचे आके गिरता है। जब नीचे गिरता है झूला, वहां पर एक इंस्पेक्टर होते हैं जो बचाव के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोगों को निकालना शुरू करते हैं, उन 26 लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उनके चेहरे के ऊपर झूले का जो हिस्सा है वो आकर गिरता है और उनकी मौत हो जाती है। 26 लोग उस झूले में सवार थे, जिनमें से बताया जा रहा है 13 लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हैं, जिनका उपचार यहाँ के नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। तो मशीन लगाए जाते हैं, जो झूले लगाए जाते हैं, इनकी भी तो परमिशन होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो ये क्या परमिशन दी गई, चेक नहीं की गई? आपको लगता है कि ये दिक्कत है? ये मुझे नहीं पता, वो तो ये प्रशासन जाने, वो जाने। आपको लगता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी मतलब कम से कम जांच होनी चाहिए अच्छे से? क्या बिल्कुल जांच होनी चाहिए अच्छे से, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिसकी जान गई है उनको तो कुछ तो होना चाहिए उनके साथ। हरियाणा पुलिस की टीम पहुंची है यहाँ पर। देखिए ये जो डॉग स्क्वाड है हरियाणा पुलिस का, वो यहाँ पर आके देखिए यहाँ पर चेकिंग जो है वो कर रही है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है ये पूरा पोर्शन जहाँ पे ये झूला गिरा था, यहाँ पर आके देखिए जो चेक है वो किया जा रहा है कि आखिर कुछ और इसमें मतलब इस तरीके से कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर तो मौजूद नहीं था, या किसी तरीके से कोई और यहाँ पर जो संवेदनशील या फिर किसी तरीके से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो यहाँ पर उस झूले के टूटने का कारण बनी हो।